بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 8 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں کاروان دہشت، مصنف مظہر کلیم ایم اے، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0332495373 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں پارٹ 8 صفحہ نمبر 157 سے۔ فارن سروس نے اس ایشور داس کے ہیڈ کوارٹر کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ ہیڈ کوارٹر کافرستان کے ایک بڑے شہر سلگام میں قائم ہے اور زمین دوز بنا ہوا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے بہت زبردست سائنسی انتظامات کیے گئے ہیں اور ایشور داس سوائے خاص ترین موقعوں کے اس ہیڈ کوارٹر سے باہر نہیں نکلتا اور اندر رہ کر ہی پوری تنظیم کو کنٹرول کرتا رہتا ہے۔ کارخانے کے محل وقوع اور دیگر تفصیلات کا سوائے پرائم منسٹر کے پورے کافرستان میں صرف ایشور داس کو علم ہے۔ اس لیے ہمیں مہادیو چکر کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے ایشور داس کو قابو کرنا ہوگا اور پھر ایشور داس سے اس کارخانے کی تفصیلات معلوم کر کے اس کارخانے کو تباہ کرنا ہوگا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو 1 گھنٹے بعد ایک خصوصی جہاز کافرستان کی سرحد کے اندر اس جگہ پیراشوٹوں کی مدد سے اتار دے گا جہاں سے سلگام نزدیک ہے۔ وہاں سے آپ نے سلگام خود پہنچنا ہے اور وہاں فارن سروس کا سربراہ ناٹران آپ کا منتظر ہوگا۔ ہیڈ کوارٹر کی تباہی میں وہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا۔ عمران اس مشن پہ آپ کا سربراہ ہوگا۔ آپ شاید مجھے پھر سے یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ معمولی سی غفلت بھی ناقابل برداشت ہوگی۔ اب شاید مجھے یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ معمولی سی غفلت بھی ناقابل برداشت ہوگی اور آپ لوگوں کی ایک ایک لمحے کی کارکردگی مسلسل میری نظروں میں رہے گی۔ آپ لوگ 1 گھنٹے کے اندر تیار ہو کر واپس دانش منزل پہنچ جائیں، جہاں سے ایک خصوصی وین آپ کو خفیہ اڈے پر لے جائے گی، جہاں سے خصوصی ملٹری پیراشوٹس جہاز سے آپ اس مشن پر روانہ ہو جائیں گے۔ کوئی سوال؟ ایسٹرو نے تفصیل سے سارے پروگرام بتاتے ہوئے کہا، لیکن سب خاموش رہے۔ وہ سب اس تیز رفتار اور خوفناک مشن کے تصور میں ہی الجھے ہوئے تھے۔ سوال کرنے کا کسی کو ہوش ہی نہ تھا۔ گڈ بائے، اوور اینڈ آل، ایکسٹرو کی سرد آواز گونجی اور جولیا نے مس میرزم کے معمول کی طرح ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا اور پھر وہ سب لوگ اٹھ کر اپنی اپنی سوچوں میں گم میٹنگ روم سے نکلتے چلے گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد آخر میں عمران اٹھا اور میٹنگ روم سے نکل کر آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی عمران آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کمال کر دیا آپ نے عمران صاحب، میں اسکرین پر دیکھ رہا تھا آپ نے کرنٹ لگنے کی جو ایکٹنگ کی ہے، میرے خیال میں دنیا کا کوئی اداکار ایسا نہیں کر سکتا۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے تھی تو حماقت، بھلے لکڑی کی کرسی پر کرنٹ لگنے کا ڈرامہ۔ میں نے تو صفدر اور کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں شبے کی جھلکیاں دیکھ لی تھی۔ عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ظاہر ہے وہ بے حد ذہین ہے، انہیں شبہ تو ہونا ہی تھا۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، یہ مشن ہی ایسا ہے کہ اس کے لیے ڈرامہ کرنا ضروری تھا۔ جب عمران سے ایسا سلوک ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے باقی ممبروں کی تو کوتاہی پر ان کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے۔ یہی تصور ہی اس مشن میں کام آئے گا۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، عمران صاحب، بس مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں کہ آپ نے مجھے پابند کر کے یہاں رکھ دیا ہے۔ کم از کم اس مشن میں تو مجھے بھی کام کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری جگہ یہاں رہ پڑتا ہوں، تم ٹیم کو لے کر چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عمران نے فوراً رضامند ہوتے ہوئے کہا، ارے صاحب، ایسا تو ناممکن ہے،
आपके बगैर मैं भला क्या कर सकता हूँ। ब्लैक जीरो ने फौरन ही हथियार डालते हुए कहा, देखो ब्लैक जीरो, हमारी जिंदगी का मिशन मुल्क की सलामती को तहफ्फुज और मुल्क के 10 करोड़ आवाम की जान और माल की हिफाजत है। अब अगर हम सब मुल्क से बाहर मिशन पर चले जाए और कोई और तंजीम इस दौरान यहाँ आ कूदे तो जाहिर है बाहर मिशन से मुल्क को बचाते बचाते आने वाली तंजीम के हाथों तबाह करा बैठेंगे। इसलिए मकाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम से मतलब होना चाहिए। इमरान ने एकदम संजीदा होते हुए कहा, ठीक है जनाब। ब्लैक जीरो ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, ये बताओ कि तमाम इंतजाम तो मुकम्मल हैं। ऐसा ना हो कि तमाम मेंबर यहाँ पहुंच जाएं और इस वक्त तक टेलीफोन संभालो। इमरान ने मौजू बदलते हुए कहा, नहीं जनाब, तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। जहाज एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, पायलट तैयार है, वहाँ नाट्रॉन और फैसल आप लोगों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ब्लैक जीरो ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, अच्छा एक बात का ख्याल रखना, दूसरी में फौरन सर्विस के एजेंटों को होशियार कर देना। वो लोग हमारे आने तक वहाँ हर लिहाज से बाखबर रहेंगे और अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो बिला झिझक फैसला कर देना। मैं इंतजार ना करना, क्योंकि मैं काफिरिस्तान में रहकर तुमसे राब्ता कायम नहीं कर सकूंगा। मैं वहाँ इस कदर तेजी से काम करना चाहता हूँ कि एक लम्हे भी जाया न हो सके। इमरान ने ब्लैक जीरो को हिदायत देते हुए कहा, ठीक है जनाब, मैं समझता हूँ। ब्लैक जीरो ने सर हिलाते हुए कहा, सर सुल्तान की ताजा तरीन खैरियत मालूम की है तुमने? इस बार इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। अगर मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो इसकी तबीयत जल्दी बहाल कर देता, लेकिन मजबूरी है, वक्त नहीं है। इमरान ने बेहद संजीदा लहजे में कहा, वो अब बिल्कुल ठीक है। वैसे वो इन तजावीज पर बेहद परेशान है, लेकिन जब मैंने इन्हें बताया कि इमरान ने इस तजवीज के खात्मे के लिए कमर बांध ली है तो मुतमईन हो गए। ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा, कमर बांध ली है मैंने? अरे मेरी तो कमर ही नहीं है, बांधूंगा क्या? इमरान ने अचानक अपने मखसूस मूड में आते हुए कहा, ये बात तनवीर को ना बता देना, वरना वो जुहिया के बजाय आपको इश्किया शेर सुनाना शुरू कर देगा। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा और इमरान ब्लैक जीरो की बात पर बेहद मुस्कुरा दिया। तवील अर्ज मेज के किनारे पर पड़े हुए सुर्ख रंग के टेलीफोनों की मुतरन्निम घंटी ने अचानक कमरे में फैले हुए गहरे सुकूत को तोड़ दिया और मेज के पीछे एक ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए अधेड़ उम्र आदमी ने सामने रखी हुई खमीम फाइल से तवील और मेज के किनारे पर पड़े हुए सुर्ख रंग के टेलीफोन की मुतरन्निम घंटी ने अचानक कमरे में फैले हुए गहरे सुकूत को तोड़ दिया और मेज के पीछे एक ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए अधेड़ उम्र आदमी ने सामने रखी हुई फाइल से चुपकर सर उठाया। इसके चेहरे पर शैतानियत और खबासत जैसे टपक रही थी, आंखों में बेपनाह चमक थी। यह काफिरिस्तान की टॉप सीक्रेट तंजीम महादीर चक्कर का सरबराह ऐश्वर दास था, जो अपने हल्के में काले शैतान के नाम से मशहूर था। इंतहा दर्जे का संगदिल और जालिम आदमी, जिसकी लुगत में रहन नाम की कोई लफ्ज सिरे से मौजूद ही ना था। महादेव चक्कर का जब से वो सरबराह बना था, महादेव चक्कर ने हमेशा मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे मिशनों पर काम किया था कि जिसमें खून की होलियां खेली जाती थी और ज्यादा से ज्यादा लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरते। वो जानबूझकर ऐसे शैतानी मंसूबे तैयार करता जिसका अंजाम लाखों नहीं तो हजारों अफराद की यकीनी हलाकत जरूर निकलता। और अब से 1 साल कबल इसने पाकेशिया को ज़हनी तौर पर तबाह करने का ऐसा मंसूबा बनाया था कि जिसकी मदद से वो 10 करोड़ अफराद की जिंदगियों से खेल सकता। उसे दरअसल काफिरिस्तान के एक नौजवान साइंसदान की इजाद करदा एक ऐसे सफूफ का पता चला था जिसको भी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर पागल कर देता है, और जब वो शख्स पागल हो जाता है फिर इसका कोई इलाज ना होता। और इस सफूफ के इल्म में आते ही इसने इसे पाकेशिया के दरिया में मिलाने का मंसूबा बना लिया था और फिर इसने इसरार करके काफिरिस्तान के वजीर आजम को इस मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए रजामंद कर लिया था और फिर इसकी निगरानी में इस केमिकल की तैयारी के लिए एक खुफिया कारखाना कायम कर दिया था।
इस कारखाने को तैयार होते होते काफी अरसा लग गया था और अब ये कारखाना पैदावार देने के काबिल हो गया था, लेकिन अभी इसमें तैयार होने वाले केमिकल की मिकदार बेहद कलील थी। लेकिन ईश्वर दास जानता था कि जल्द ही ये मिकदार बढ़ाई जाएगी और फिर वो अपने शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद कर सकेगा। जब दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज पेश हुई तो इसमें काफिरस्तान की तरफ से 4 नुमाइंदों में ईश्वर दास को खास तौर पर इसलिए शामिल किया गया था ताकि वो ये तजवीज वहां पेश कर सके। इस तरह की तजवीज मंजूर हो जाने के बाद एशिया की सबसे बड़ी ताकत इनकी हमनवा हो जाएगी और वो बिला खौफ व खतरा इस भयानक मंसूबे पर अमल दरामद कर गुजरेंगे। और वही हुआ कि ईश्वर दास की तजवीज मंजूर कर ली गई और इस पर फौरन अमल दरामद किए जाने पर के अहकाम भी साबिर हो गए और ईश्वर दास ने हंगामी बुनियादों पर केमिकल की बुनियाद बढ़ाने के इंतजाम शुरू कर दिए और इसके अंदाजे के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा 3 रोज के अंदर इतना केमिकल तैयार हो जाएगा कि उसे 1 हफ्ते तक मुसलसल दरियाओं के पानी में मिलाया जा सकता है। इस वक्त भी वो अपनी रिपोर्टों पर मबनी फाइल का मुताला कर रहा था जिसमें महादेव चक्कर के एजेंटों ने दरियाओं के इस स्पॉट का सर्वे किया था जहां से ये केमिकल मिलाया जाना था और वो एक स्पॉट पर पूरी तरह गौर फिक्र कर रहा था कि ताकि इस किसी किस्म की रुकावट पैदा न हो सके। यही वजह थी कि टेलीफोन की घंटी बजते ही इसके चेहरे पर नाखुशगवार से असरात फैलते चले गए थे। हेलो, ईश्वर दास स्पीकिंग। ईश्वर दास ने रिसीवर उठाकर बड़े कड़क लहजे में कहा, बॉस, रंजीत कमल एक अहम इत्तला आपको बराह रास्त देना चाहता है। उस तरफ से मुतबाना लहजे में कहा गया, रंजीत कमल, मगर वो तो खाम माल के सिलसिले में सप्लाई लाइन पर था। ईश्वर दास ने चौंकते हुए कहा, जी हाँ, मगर वो बजिद है कि इसके पास कोई अहम इत्तला है जो वो बराह रास्त आप तक पहुंचाना चाहता है। उसी तरफ से कहा गया, ओके, मिलाओ उससे। ईश्वर दास ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, बेहतर है सर। उसी तरफ से कहा गया और इसके बाद चंद लम्हों तक लाइन बेजान सी रही। फिर हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी और इसके बाद एक मखनी सी आवाज रिसीवर पे गूंजी। आवाज इतनी कमजोर और निढाल सी थी जिसे बोलने वाला जिंदगी से अनकरीब महरूम होने वाला हो। रंजीत कमल बोल रहा हूँ जनाब। बोलो, क्या बात है? ईश्वर दास ने कड़क लहजे में कहा, बॉस, मैंने यहाँ सलगाम में 2 ऐसे अफराद को देखा है जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इनमें से एक बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम मास्टर्स कलर्स का रुकन जवाना है और दूसरा जोसेफ है जो पाकिस्तान के सबसे खतरनाक आदमी अली इमरान का बॉडीगार्ड है। वो दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। ये अपनी जगह इंतहाई हैरत अंगेज बात है। मैंने जब इन्हें देखा तो मुझे तशवीश लाहक हुई। मैंने इनकी खुफिया निगरानी की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस अनकरीब सलगाम पहुंचने वाली है। वो यहाँ किसी खुसूसी मिशन पर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का बराह रास्त सलगाम में आना हमारे लिए नेक फाल साबित नहीं हो सकती। रंजीत कमल ने तफसील बताते हुए कहा, मगर तुम कह रहे हो कि वो जवाना किसी बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीम कारकुन है, फिर इसका पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक? वो यहाँ क्यों आ रहा है? ईश्वर दास ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ईश्वर दास रंजीत कमल की बेपनाह सलाहियतों का बेहद काहिल था। बज़ाहिर ये इंतहाई कमजोर और मखनी सा आदमी था जिस पर एक नजर डालने के बाद कोई शख्स दूसरी नजर डालने भी गवारा न करता। बेपनाह याददाश्त का मालिक, इंतहाई ज़हीन और फुर्तीला था और ये महादेव चक्कर का एजेंट था। इसे महादेव चक्कर में इसकी अपनी सलाहियतों के एतराफ के तौर पर सीक्रेट सर्विस से लाया गया था। बज़ाहिर तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जोसेफ और जवाना की इस तरह घुल मिल कर रहने में इसे नतीजे पर पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने किसी खास मिशन के लिए मास्टर क्लर्क्स की खिदमत हासिल की हैं और इस मिशन की तकमील के लिए जवाना यहाँ आया है और शायद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसकी मदद के लिए आ रही हो। मास्टर क्लर्क दुनिया की ऐसी खौफनाक तंजीम है जो बड़े से बड़े अहम तरीन कत्ल के लिए बुक की जाती है। जवाना की यहाँ मौजूदगी किसी बहुत अहम मकसद के कत्ल की साजिश का पेश पैमा नजर आती है और फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का बराह रास्त सलगाम पहुंचना। मुझे यकीन है कि ये लोग इंतहाई यकीनन हमारी राह पर लग चुके होंगे, क्योंकि सलगाम में सिवाय महादेव चक्कर के हेडक्वार्टर के और कोई अहम चीज नहीं है और सलगाम में आने से ज्यादा अहम शख्सियत और कोई नहीं है। रंजीत कमल ने अपने तौर पर नतीजा अखज़ करते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त भी हो सकता है और नहीं भी। बहरहाल मौजूदा हालत में हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इन दोनों के लिए
इन दोनों को एक लम्हा जाया किए बगैर हेडक्वार्टर तक पहुंचा देना चाहिए और बगैर कोई लम्हा जाया किए इन जहनों से तमाम प्रोग्राम सामने आ जाना चाहिए। ईश्वर दास ने इस पर फैसला कुन लहजे में कहा। ठीक है बॉस, मैं भी यही चाहता हूँ, रंजीत कमल ने जवाब दिया। उस वक्त ये दोनों कहाँ हैं और इनकी पहचान क्या है? ईश्वर दास ने सर्द लहजे में पूछा। बॉस, ये दोनों होटल ब्लू स्टार के हाल में मौजूद हैं और ये इस होटल में रिहाइश पसीर हैं। सर, इनकी पहचान मुश्किल नहीं है। ये दोनों हबशी हैं और इनके जिस्म दियों की तरह हैं, बेपनाह लंबा कद और इसी तनासिब से बेपनाह चौड़ा सीना। इन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है, रंजीत कमल ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं इनका बंदोबस्त करा लेता हूँ, ईश्वर दास ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया और फिर इसने मेज के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। तो लम्हे दरवाजे पर एक मुसल्ला अफराद नमूदार हुआ। यस बॉस, दरबान ने मोतबाना लहजे में कहा। हरिचंद को बुलाओ, ईश्वर दास ने कहा और दरबान सर झुकाकर वापस मुड़ गया और दरवाजे में गायब हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद दरवाजे में एक कवि हरकील नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसका पूरा सर पहलवानों की तरह गंजा था, लेकिन दाएं तरफ बालों की एक लंबी सी लट को बाकायदा गोंद कर दाएं कान तक लटका दिया गया था। लेकिन दाएं तरफ बालों की एक लंबी सी लट को बाकायदा गूंद कर दाएं कान तक लटका दिया था। इसने सियाह रंग का चुस्त लंबा पहना हुआ था। इसने सियाह रंग का चुस्त लिबास पहना हुआ था। यस बॉस, चोटी वाली हरिचंद ने अंदर आकर मर्दाना लहजे में सर झुकाते हुए कहा। हरिचंद, होटल ब्लू स्टार के हॉल में 2 कवि होटल हबशी मौजूद हैं। मैं इन्हें फौरन हेडक्वार्टर के डार्क रूम में देखना चाहता हूँ, लेकिन जिंदा हालत में। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे मुझे इत्तला दे दी जाए ताकि मैं अपने सामने इनसे पूछगछ कर सकूं, ईश्वर दास ने कड़क लहजे में हरिचंद से मुखातिब होकर कहा। हुक्म की तामील होगी बॉस, हरिचंद ने सर झुकाते हुए बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। ख्याल रखना कि दोनों बेहतरीन लड़ाके और इंतहाई खतरनाक आदमी है, ईश्वर दास ने समझाते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मेरा सेक्शन ऐसे लोगों से निपटना जानता है। ये दोनों ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे बाद डार्क रूम में पहुंच चुके होंगे, हरिचंद ने पहले से ज्यादा बाएतमाद लहजे में कहा और ईश्वर दास ने इस बात में सही ला दिया और एक बार फिर फाइल पर झुक गया तो हरिचंद सहलाते हुए वापस चला गया और फिर हरिचंद को गए हुए ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी और ईश्वर दास ने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। हरिचंद बोल रहा हूँ जनाब, दूसरी तरफ से हरिचंद की मुतमईन आवाज सुनाई दी। ओह, क्या रहा इन दोनों का? ईश्वर दास ने चौंकते हुए पूछा। वो दोनों डार्क रूम पहुंच चुके हैं जनाब, हरिचंद ने जवाब दिया। ओह, इतनी जल्दी? क्या हुआ, कोई मसला तो नहीं खड़ा हो गया? ईश्वर दास ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं जनाब, हम लोग पुलिस की वर्दियों में होटल में पहुंच गए। इधर फिर पुलिस कार्ड दिखाकर इन्हें चंद कागजात की चेकिंग के सिलसिले में हेडक्वार्टर चलने की दावत दी। इनसे हमने वादा किया है कि ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई है और इन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट बाद वापस पहुंचा दिया जाएगा। चुनाचे वो मकामी पुलिस से ताउन पर तैयार हो गए और हमारे साथ मखसूस जीप में आ गए, जहाँ बेहोश कर देने वाली गैस से इन्हें बेहोश करके हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। अब वो डार्क रूम के माहिर की तहवील में है, हरिचंद ने तफसील बताते हुए कहा। वेरी गुड, अच्छा जहानत से भरपूर प्लान था। मैंने तो समझा था कि तुम इन्हें जबरदस्ती उठा लाओगे, ईश्वर दास ने हंसते हुए कहा। वो दिल ही दिल में हरिचंद की जहानत की दाद दे रहा था। अगर वो इस तरह ना कहते तो हम इन्हें अगवा करके भी मुकम्मल प्लानिंग करके गए थे, लेकिन इसकी जरूरत ही पेश न आई और इसकी नफसियाती वजह से ये है कि हर गैर मुल्की हतुल वसी मकामी पुलिस से ताउन करने की कोशिश करता है और इसी नफसियात को सामने रखने में मैंने ये प्लान बनाया था, तो 100% कामयाब रहा, हरिचंद ने जवाब दिया। गुड, यही वजह है कि मुझे तुम्हारे सेक्शन पर बेपनाह इत्मीनान है कि तुम मौके महल देखकर भरपूर जहानत इस्तेमाल करते हो। गुड बॉय, गुड, ईश्वर दास ने जवाब देकर इंटरकॉम पर रिसीवर बंद कर दिया। फिर इसने फाइल बंद करके इसे अलमारी में रखकर अलमारी लॉक कर दी और तेज कदम उठाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, दरवाजे पर मौजूद 2 मुसल्लह दरबान ने इसके पीछे मुतमाना अंदाज में चलने लगे, मगर ईश्वर दास इनकी तरफ मुतवज्जा किए बगैर तेज कदम उठाता मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया, जिस पर डार्क रूम की तख्ती लगी हुई थी। डार्क रूम का दरवाजा बंद था और बाहर सूख रंग का बल्ब जल रहा था।
ऐश्वर्य दास ने दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। दूसरे लम्हे दरवाजे में एक मामूली सी झिरी पैदा हुई और दूसरी तरफ से एक आंख सी इसका जायजा लिया। फौरन बाद ही झिरी बंद हो गई। इसके बाद ही दरवाजे पर चलने वाला सूट बल्ब बुझ गया और दरवाजा खुलता चला गया। ऐश्वर्य दास कदम बढ़ाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। ये एक वसी और कमरा था जो अपने नाम से कतन बरखिलाफ तेज रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे की दाईं दीवार के साथ दो बड़ी बड़ी पेचीदा सी मशीनें नस्ब थी, जिनके साथ दो सफेद रंग के स्ट्रेचर पड़े हुए थे। इन स्ट्रेचरों पर दो कवि हैकल हबशी बेहोश पड़े हुए थे। स्ट्रेचरों पर शीशे के गिलास चढ़े हुए थे, जिसे शीशे के ताबूत हो अंदर लेटे हुए दोनों हबशी के सरों पर हेलमेट से चढ़े हुए थे, जिनसे मुख्तलिफ रंगों की बेशुमार तारे ताबूत के ऊपर मौजूद बड़े बड़े सुराखों से निकलकर मशीनों में गुम हो गई थी। दोनों मशीनों के दरमियान में 4 छोटी छोटी स्क्रीनें नस्ब थी और मशीनों पर मुख्तलिफ रंग के बेशुमार छोटे छोटे डायलों और दीगर अलामात नजर आ रहे थे। ये दोनों मशीनें ज़हनी चेकिंग की जदीद तरीन मशीनें थी और जो कुछ इंसान के जहन के नहा खानों में मौजूद होता है, एक लम्हे में इसे बाहर स्क्रीन पर पेश कर देती थी। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि बताने वाले को जरा बराबर भी एहसास न होता था कि वो क्या बता रहा है या इससे क्या पूछा जा रहा है, और इसके लिए बताने वाले का होश में होना भी जरूरी न था। मशीन खुद ही इसके शऊर लाशऊर की पड़ताल करके जवाब ढूंढकर इसे पूछने वाले की जबान में ही स्क्रीन पर जाहिर कर देती थी। इन मशीनों की वजह से ही ऐश्वर्य दास ने इसका नाम डार्क रूम रखा हुआ था। इस कमरे में इंसानी जहन के अंधेरों में गुम मालूमात निकाली जाती थी। मशीनों के सामने दोनों जवान सफेद कोट पहने खड़े थे। ये इन मशीनों के ऑपरेटर थे। ऐश्वर्य दास इसके अंदर दाखिल होते ही इन दोनों से सर झुकाकर ऐसे सलाम किया और ऐश्वर्य दास सर के इशारे से जवाब देता हुआ मशीनों के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के सामने एक छोटी सी मेज मौजूद थी, जिस पर यू टाइप का एक माइक रखा हुआ था। इस माइक के जरिए इस मशीन में सर से सवाल करके जवाब हासिल किए जाते थे। इस मशीन को ऑन किया जाए, ऐश्वर्य दास ने पहली मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर ऑपरेटर ने सर हिलाते हुए मशीन को साइड में लगाकर एक बड़ा सा हैंडल नीचे की तरफ दबा दिया। हैंडल दबाते ही मशीन में जिंदगी की लहर से दौड़ती गई और मुख्तलिफ रंग के बेशुमार बल्ब तेजी से जलने बुझने लगी और डायल पर मौजूद मुख्तलिफ रंगों की सुइयां थरकने लगी। ऑपरेटर ने मुख्तलिफ छोटे छोटे बटन दबाकर डायलों पर मौजूद सुइयों को मुख्तलिफ हिस्सों पर सेट किया और फिर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। मशीन की स्क्रीन पर भी रोशनी फैल गई थी और इसमें सोट रंग की लहरें सी दौड़ रही थी। सर सवाल कीजिए, ऑपरेटर ने मुद्दाना लहजे में ऐश्वर्य दास से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारा नाम क्या है? ऐश्वर्य दास ने पूछा। जवाना स्क्रीन पर फौरन ही नाम जाहिर हो गया। तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है? ऐश्वर्य दास ने दूसरा सवाल किया। किस तंजीम से नहीं, मैं मास्टर इमरान का मुलाजिम हूँ। स्क्रीन पर जवाब जाहिर हो गया। क्या तुम्हारा ताल्लुक मास्टर क्लर्क से नहीं है? ऐश्वर्य दास ने हैरान होते हुए पूछा। पहले था, लेकिन फिर तंजीम मास्टर इमरान के हाथ खत्म हो गई और मैं मास्टर इमरान की मुलाजमत में आ गया, जवाना ने जवाब दिया। सलगाम में क्यों आए हो? ऐश्वर्य दास ने पूछा। मास्टर इमरान ने भेजा है, जवाना ने जवाब दिया। क्यों भेजा है? ऐश्वर्य दास ने इस बार कड़क लहजे में सवाल करते हुए पूछा। मुझे वजह का इल्म नहीं है। मास्टर इमरान ने हुक्म दिया है कि दिया कि मैं और जोसेफ सलगाम पहुंचकर किसी होटल में रहें। वो बाद में हमसे राब्ता कायम करेगा, चुनाचे हम यहाँ आ गए, जवाना ने जवाब दिया। ये इमरान कौन है और इसका किस तंजीम से ताल्लुक है? ऐश्वर्य दास ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। इमरान मेरा मास्टर है, ग्रेट मास्टर, और मुझे इल्म नहीं है कि इसका ताल्लुक किस तंजीम से है और ना मुझे जानने की जरूरत है। जवाना का जवाब बिल्कुल सीधा साधा और साफ था, क्योंकि इस मशीन के सामने झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए जाहिर है कि ऐश्वर्य दास इसके हर जवाब पर यकीन करता चला जा रहा था। क्या इमरान ने तुमसे राब्ता किया है? ऐश्वर्य दास ने पूछा। नहीं, जवाना ने मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर ऐश्वर्य दास ने ऑपरेटर को हाथ के इशारे से मशीन बंद करने के लिए कहा। ऑपरेटर ने आगे बढ़कर मशीन ऑफ कर दी। ये तो सिर्फ हुक्म का गुलाम है और कुछ नहीं जानता। दूसरी मशीन ऑन करो, वो शायद कुछ जानता हो, ऐश्वर्य दास ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। दूसरे ऑपरेटर ने आगे बढ़कर दूसरी मशीन ऑन कर दी। तुम्हारा क्या नाम है? ऐश्वर्य दास ने दूसरी स्क्रीन के सामने स्ट्रेचर पर मौजूद हबशी से सवाल किया। जोसेफ दी ग्रेट, और दूसरी मशीन की स्क्रीन पर जवाब जाहिर हो गया। तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है? किस मुल्क और किस तंजीम से है? ऐश्वर्य दास ने सवाल किया।
मैं ग्रैंड मास्टर इमरान का बॉडी गार्ड हूँ, मेरा मुल्क पाक एशिया है। जोसेफ ने जवाब दिया, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? ईश्वर दास ने कहा, वैसे इसे खुद भी इस सवाल का जवाब मालूम था। ग्रैंड मास्टर इमरान ने जोसेफ ने ईश्वर दास की एक और इसकी तौकीद के एहन मुताबिक जवाब दिया, क्यों भेजा है, वजह बताओ। ईश्वर दास ने सवाल किया, मुझे वजह का इल्म नहीं है, बस इसने हुक्म दिया है कि मैं एक जवाना सलगाम पहुंच जाऊं और हम यहाँ पहुंच गए। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, वो खुद यहाँ आएगा? ईश्वर दास ने सवाल किया, हाँ, वो खुद यहाँ पहुंचने वाला है। इसने कहा था कि वो यहाँ पहुंचकर हमसे राब्ता कायम करेगा। जोसेफ ने जवाब दिया, वो यहाँ क्या करने आ रहा है? ईश्वर दास ने इश्तियाक अमीज लहजे में पूछा, मुझे वजह का इल्म नहीं है, अलबत्ता इसने रूसिया एजेंट स्पार्क पर तशद्दुद करके इससे सवालात किए थे और इसके बाद इसने हमें यहाँ आने का हुक्म दिया था। जोसेफ ने तस्वीर बताते हुए कहा, रूसिया एजेंट स्पार्क, मगर वो पाकिस्तान कैसे पहुंच गया? ईश्वर दास ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, तफसीलात का मुझे इल्म नहीं है। मास्टर इमरान इस आदमी को लेकर राना हाउस आया था, ये आदमी मफलूज था। मास्टर ने बताया कि ये आदमी शाह सुल्तान को अगवा करके ले जा रहा था कि इसने पकड़ लिया। इसकी कमर की हड्डी के मोहरे मास्टर ने उतार दिए थे कि इसने अपने मखसूस तरीके से सवाल जवाब किए और इस्पाक ने सब बता दिया। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, इस्पाक ने क्या क्या बतला दिया? ईश्वर दास ने इंतहाई इश्तियाक अमीज लहजे में पूछा, मुझे तफसीलात का इल्म नहीं है क्योंकि ग्रैंड मास्टर इमरान ने मुझे बाहर भेज दिया था। अलबत्ता मैंने इतना सुना था कि पाकिस्तान के खिलाफ 2 मिशन कायम होते हैं, जिनमें एक मिशन काफिस्तान का और दूसरा रूसिया का है। जोसेफ ने जवाब दिया और ईश्वर दास बुरी तरह सर हिलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस खुफिया मीटिंग का इमरान को या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को कैसे हो गया। तुम्हारा मास्टर इमरान पाकिस्तान कैसे दाखिल होगा? ईश्वर दास ने चंद लम्हे की खामोशी के बाद पूछा, मुझे इसका इल्म नहीं। जोसेफ ने मुख्तसर सा जवाब दिया, ओके, मशीन ऑफ कर दो। ईश्वर दास ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ऑपरेटर ने हाथ बढ़ाकर मशीन ऑफ कर दी। मैं हरिचंद को भेजता हूँ, इन्हें बेहोशी के आलम में वो वापस ले जाएगा। ईश्वर दास ने इस ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा और इसने हिलाने पर वो तेज कदम उठाकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। अपने मखसूस कमरे में आकर ईश्वर दास ने हरिचंद को मुतल किया। थोड़ी देर बाद हरिचंद कमरे में पहुंच गया। ईश्वर दास ने ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा, इसने सही जाने पर वो तेज कदम उठाकर कमरे से बाहर निकलकर चला गया। अपने मखसूस कमरे में आकर ईश्वर दास ने हरिचंद को तलब किया। थोड़ी देर बाद हरिचंद कमरे में पहुंच गया। बैठो ईश्वर दास, इसने सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठने का कहा और हरिचंद खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। इन दोनों हफ्शों को तफसील मालूमात का इल्म नहीं है। बहरहाल इतना मालूम हो गया है कि हमारा मिशन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इल्म में आ गया है और वो इसे रोकने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ईश्वर दास ने हरिचंद से मुखातिब होकर कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ आ रही है सलगाम में? हरिचंद ने बुरा चौंकते हुए कहा, इन दोनों को यहाँ भेजने से तो यही जाहिर हो रहा है कि इन्हें हमारे हेडक्वार्टर के मुताबिक इल्म हो गया है, इसलिए वो यहाँ ही पहुंचेंगी और जाहिर है कि इन्हें हमारे मिशन का भी इल्म हो चुका है। इसलिए इनके टारगेट 2 ही हो सकते हैं, एक तो महादेव चक्कर का हेडक्वार्टर, दूसरा केमिकल तैयार करने वाला कारखाना जो सलगाम में मौजूद है। ईश्वर दास ने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा ही होगा बॉस, लेकिन इन्हें यहाँ के मुतालिक मालूम कैसे हुआ? महादेव चक्कर के हेडक्वार्टर और कारखाने के मुतालिक तो पाकिस्तान के हुकाम और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को भी तफसीलात का इल्म नहीं है। हरिचंद ने हैरान होते हुए कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बेहद खतरनाक एजेंसी है। जाहिर है इसके आदमी पहले से यहाँ काम कर रहे होंगे और हमसे किसी काली वेड़ ने ही इन्हें मालूमात मुहैया की होगी। बहरहाल जो होना था वो हो चुका। अब हमारे लिए मसला ये है कि हम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को किस तरह खत्म करेंगे। इस सिलसिले में मेरे जहन में 2 हल हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को चौकन्ना किया जाए और वो सलगाम में फैलकर इसका रास्ता रोक लें। दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि हम खुद इसका रास्ता रोकें और इन्हें खत्म कर दें। ईश्वर दास ने जवाब दिया, बॉस आप बेफिक्र रहें, मेरा सेक्शन सलगाम में पूरी तरह पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस का मुकाबला कर सकता है। इसके लिए पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस को दरमियान में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हें बुलाने का मतलब ये होगा कि ये मिशन इन पर भी जाहिर किया जाएगा और जबकि वजीर आजम साहिब के इस बारे में इंतहाई सख्त अहकामात मौजूद हैं कि जिस कदर कम लोगों को इस मिशन का इल्म हो सके। हरिचंद ने जवाब दिया, ठीक है, मैं भी यही सोचता हूँ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे का सहारा महादेव चक्कर के सर ही
बांधना चाहिए। हमारे पास इस सिलसिले में वाज़ेह क्लियू मौजूद है। इन दोनों हबशियों को वापस इनके होटल पहुंचाकर और इंतहाई खुफिया तौर पर इनकी निगरानी करो। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ आते ही इनसे राब्ता कायम करेगी और इससे राब्ता कायम करते ही हम इन्हें फौरन ही ट्रेस कर लेंगे। इनके बाद इनका खात्मा हमारे लिए नामुमकिन हो नहीं। ईश्वर दास ने पॉलिसी को वजाहत करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है जनाब, ऐसा ही होगा। आप बेफिक्र रहें। यहाँ हमारा पार्ट 8 इख्तिताम पसीर होता है। बकिया किताब सफ़ा नंबर 178 से समाअत फरमाइए। शुक्रिया।